Okay, Assalamu alaikum. Welcome to lecture 14 of natural language processing. So as we had planned in the previous lecture, this lecture is meant for review before your midterm, which is scheduled on Saturday. We will not be covering any new content in this lecture. And the idea is that we will be addressing your questions if you have any. I hope those who have come to this session have come prepared with some questions. So we'll be addressing those questions in addition to just giving you an outline of what we have covered in this course and what would be tested in your midterm exam, which is scheduled, as I said, on Saturday. So actually, there are just a couple of people attending this session so far. So I will basically start with the midterm exam. Your midterm exam is scheduled on Saturday and from 11 a.m. to around 2 p.m. The actual exam would be, I think, around 2 hours long. There will be two parts. So there will be a part A, which would be on LMS. So these would be the type of questions that you have seen in your quizzes. So most likely they will have about 20 questions. And as in the quizzes, these questions will be in linear fashion and you will have to address them one after the other. And you will have about 40-45 minutes to address this section. So after the completion of this section, you will have another part, which is part B. So part B would be done on paper. So you will need to have pen, paper, as well as you will need to have a calculator throughout your exam. And this would have about 3 to 4 questions. You will have about 1 hour, 15 minutes maximum. So about 3 questions and 1 hour. Okay. And obviously after the end of this time period, you will be given additional 5 to 10 minutes to scan your writings and upload it on LMS. This upload would be on the assignments section. So I'll create an assignment tab for the submission of part B. Of course, part A would be in test and quizzes, and the submission would be done automatically. Okay, so that so was. Would we have to design a classifier? Would we have to design a classifier like the one you asked in the previous quiz? In part B. In which part? In both parts, yes. In part B. That's possible. Yes, but it's more likely in part B, which is which you have to do by on paper and pen. Okay. Okay, regarding the policies for the exam, you can use material for your courses, for the course, meaning that you can refer to any notes that you have, as well as even slides. But you are required not to look or search on the web. And this is kind of a honor, you can say, pledge by you guys that you will not search on the web. And of course, you are not allowed to discuss anything with anyone else.
including your fellow students who are taking the exam and including anyone else. So the exam has to be done individually. You can refer to all material that we had in the course, including slides, but you cannot search for new content on the web. And then, of course, the times that I have set for the exams would be kind of restrictive. So if you are involved in any of these other activities, you won't be able to complete the exam on time. So this is important. Secondly, you would be required to be on Zoom, and we will ask you to have your video on. Okay? So you need to come prepared with these requirements, or if there are any, you can say, restrictions in terms of equipment that you have, then you try to arrange for the requested equipment with the camera for the duration of the exam. Okay? And you are required to be available sharp 11, I would say even 10:55, and most likely the part A would start around 11:15 or 11:10. So we will be spending the first 10 to 15 minutes making sure that all the requirements are met. And then once part A has started, you will be required to submit in the requested 40-45 minutes. And I don't think so you will have a longer window. Everyone has to start at the same time. And then maybe you'll have about 5 to 10 minutes break, and then the next session would start, which is part B. And this, of course, again, you have to be on Zoom. You have to do on paper. Okay? And after this session ends, everyone has to stop, and then you can do the scanning, and you will given an additional 10 minutes and upload the scanned version on the assignment tab. Okay? So I think this kind of details the procedure. I will draft an email for this and send it out as well, so that everyone is on the same page. So are there any questions on this? Okay. सर आप प्रॉपर सिलेबस वो बता देंगे चैप्टर्स कौन से इंक्लूडेड है फर्स्ट फोर जरा फिर से बोले, मुझे समझ नहीं आई। सर सिलेबस प्रॉपर बता देंगे फर्स्ट फोर चैप्टर्स हैं बस जी, सिलेबस में इट्स आई थिंक फेयरली स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो भी मैं ईमेल में डाल दूंगा। But syllabus includes everything that we have covered till the last lecture. So this includes, for example, introduction. ठीक है, so introduction में क्या आपने cover किया था? Introduction to NLP. We talked about various motivational examples. We talked about some challenges. ठीक है, so all of this is introduction. Then we talked about linguistics, for example. So you need to know various terminologies from linguistic. We also covered this, and there's a slides for this as well. So linguistic is also included. And then after that, we talked about text processing. So text processing has 2 or 3 main components. So we started with regex. So you need to know about regex and its application in NLP. Of course, we will be following the syntax that is given in the book as well as in the slides. Regex may have slightly varying syntax, but we will be focusing on the syntax that is given in the book. So after regex, we basically discussed basic processing steps. So this included things like stop word removal and stemming and lemmatization. It also discussed morphology in slightly more detail.
because that's from where you get more stemming. And we also talked about things like sentence identification, sentence classification, and so on. We talked about tokenization and various ways of tokenizing. We also talked about subword tokenization, which was new from last year. Last year, में subword tokenization discuss नहीं हुआ था. So that was basic text processing. And then we talked about the min edit distance. This is also part of text processing. In general, min edit distance is one way of quantifying the similarity or dissimilarity between two strings. So we discuss this, a particular algorithm, the dynamic programming based algorithm for finding the min edit distance as well as the associated alignment. ठीक है? तो ये हमारा, and by the way, this was chapter 2 of the textbook. Of course, in this course, we have just one textbook, main textbook. सारी चीजें mostly majority उसी से ही आ रही हैं. So we don't have really to need to refer to additional textbooks. Although you can read up stuff on the web for your supplementary reading, but कोई supplementary textbook नहीं थी. So text processing के बाद हमने क्या किया था? We talked about n-gram language modeling. ठीक है? So n-gram language modeling, as you know, we started with basic concept, the idea, the motivation behind n-gram language modeling. We then talked about various ways of estimating the probabilities. And this part included a number of approaches. We started with the maximum likelihood estimate. We then talked about add one smoothing, add k smoothing, or smoothing with the prior probabilities of the unigram. We also talked about interpolation based estimates. We talked about backoff and stupid backoff. Stupid backoff especially is used for WebGram, web scale, n-grams. We talked about very briefly ideas about managing large scale n-grams. What else? So we then moved on to the more, you can say, empirical based approaches for estimations like the good Turing estimates and the Nizar-Ni estimates. Okay. So that was the n-gram language modeling. So after that, we moved on to text classification and we discussed naive-based classifier. So naive-based classifier, we discussed various applications, of course, motivated the classification with applications. And one of the application was sentiment classification. And we used naive-based classifier for text classification. We discussed the formulation. We discussed with an example as well. And specifically, we focused on the multinomial naive-based approach. We also briefly talked about the binarized multinomial naive-based. And there are some other variations as well. We didn't talk about them in detail, primarily the multinomial and the binarized multinomial naive-based. So we talked about the relation of naive-based with language modeling, n-gram language modeling. We also talked about the naive-based classifier as basically capturing features. So how can you incorporate additional features into the naive-based classifier? We discussed that as well. We also talked about evaluating classifiers in general and talked about methods like precision recall, F-measure for binary classes as well as multi-classes. And we also briefly discussed how to compare and evaluate classifiers more robustly. So we discussed a number of approaches in that regard as well. And these are basically standard machine learning types of techniques.
So we briefly also talked about sentiment classifiers and the features that might be useful for sentiment classifiers. Although we will talk about sentiment classifiers classification again, I was hoping we would be able to cover that before the mid, but वो नहीं हुआ. So वो हम थोड़ा सा डिटेल में और भी देखेंगे, especially when we discuss lexicon-based classifiers. So after that, we talked about logistic regression. And essentially, we talked about logistic regression, its formulation, and essentially that's where we stopped. Okay. So ये ही content आपका evaluated होगा in the midterm exam. So I was looking at last year. So last year, it looks like we did in a bit more pace, because last year we had started vector representations and embeddings as well. So I think 1 or 2 lectures or 3 lectures extra थे last time. At least speed ज़्यादा थी मेरे ख्याल से. But anyway, so that's how it is right now. So any questions? सर ऑफ टॉपिक है, हमने पोल सबमिट करवाना था आज, तो उसकी प्रपोजल पे डेडलाइन आपने 11:55 PM दी हुई थी. आई थिंक मुझे आपसे गलती हो गई है, वो AM पे कर दिया उसने. सो इट्स क्लोज राइट नाउ. वो काइंडली आप ओपन करवा देंगे. मेल तो कर दिया लेकिन रिप्लाई नहीं आया. ठीक है. तो डेडलाइन आज की डेट थी? यस सर, आज की रात को थी. उसने मेरे ख्याल से 11:55 AM कर दी गलती से. अच्छा चलिए, वो मैं चेंज कर लूँगा, चेंज कर दूंगा. ठीक है. ठीक है. ठीक है. अच्छा, एक थोड़ी सी करेक्शन फ्रॉम जी क्वेश्चन. हाँ सर, वो बाइट पेयर एनकोडिंग में जब हम करते हैं एडजेसेंट फ्रीक्वेंट एडजेसेंट कैरेक्टर्स को लेके उनको मैच करके और फिर उसको दोबारा वोकैबुलरी में इंसर्ट करते हैं, तो वो जो हम इंसर्ट करते हैं वो किस पोजीशन पे इंसर्ट करते हैं? एडजेसेंट की पोजीशन पे. इस तरह बुक में इस तरह लिखा हुआ है. एडजेसेंट की पोजीशन कौन सी होती है इसमें? फॉर सम रीजन आपकी आवाज़ जो है ना बहुत ही वो आई है डिस्टॉर्टेड किस्म की, मुझे वैसे नहीं समझ आई. कैन यू रिपीट? मे बी आपकी आवाज़ थोड़ी सी बहुत फैली हुई आ रही है. मे बी आपकी. ओके, कैन यू जस्ट रिपीट? हाँ, मैं पूछ रही थी बाइट पेयर एनकोडिंग के अंदर जब हम मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर्स के लेते हैं जी जी, और उसको मैच करके दोबारा से वोकैबुलरी के अंदर इंसर्ट कराते हैं, तो हमारे पास वोकैबुलरी साइज इंक्रीज होता है. तो जो हम मैचअप करके जो वर्ड बना के इंसर्ट कराते हैं वो किस पोजीशन पे इंसर्ट होता है? उसकी जगह कोई रिप्लेसमेंट होती है या सिर्फ इंसर्शन होती है? ठीक है. तो बाइट पेयर एनकोडिंग में बेसिकली वी बेसिकली इंसर्शन पोजीशन की बात कोई नहीं होती उसमें. वी आर डिफाइनिंग टाइप्स फॉर आवर वोकैबुलरी. ठीक है. वी ऐड दैट न्यू टाइप इनटू द वोकैबुलरी. पोजीशन आप किस सेंस में बात कर रही हैं? किधर पोजीशन? इन द टेक्स्ट? सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास जी सर, बुक के अंदर इस तरह से था कि एडजेसेंट को रिप्लेस हम कर देते हैं उसके साथ उसके occurrence of adjacent with C in T new, तो वो नहीं मुझे समझ लग रहा था. अच्छा ठीक है. लेट मी, ऑल्दो आपकी आवाज़ फिर ब्रेक हो रही थी, बट लेट मी जस्ट सी ट्राई टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स. बेसिकली आप स्टार्ट जो करते हैं बाइट पेयर एनकोडिंग में, यू स्टार्ट विद as small tokens as possible. So you can even start with characters B and C, for example. ठीक है. And initially यही आपके vocabulary होती है, this characters. ठीक है.
and then you grow your vocabulary. So let's say from these characters, maybe you have found, for example, double A, which also occurs very frequently. ठीक है ना? So you add this double A into the vocabulary as well. So you don't typically replace, replacement की policies होती हैं, but usually जो हमारा stopping criteria होता है, we add the bigger chunks also in the vocabulary. So for example, if we add AA, तो हमारी vocabulary में A भी होगा और AA भी होगा और B भी होगा और C भी होगा. और हमारा stopping criteria typically वो होता है कि we had already defined a upper limit N on the number of types or the size of the vocabulary. If we have reached that, we then stop. ठीक है? Yes. So उसमें एक चीज है जो मे बी रिप्लेस को जो आपको कंफ्यूज कर रही है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमने ए डाल दिया vocabulary में, then next time when we scan the data set, we don't count A and A separately. In that sense, we will replace that A with AA. जहाँ वो bigger token आ रहा है, bigger token हम count करेंगे, not the smaller one. सर इसमें आपसे पूछा था जो suppose we have a word called low, LOW, और LO most common है जो occur कर रहा है पेयर में. तो LO would be a separate word in the vocabulary जो कि हम बना रहे हैं, या वो कैसे treat होगा? हाँ, separate होगा. If that was a sub word that you actually found frequently, तो LO उसके अंदर आएगा separately vocabulary में. तो उसमें एक थोड़ी सी और फाइनल डिटेल्स भी हैं. आई थिंक वो फाइनल डिटेल्स हमने नहीं देखी. एक तो वो था कि इफ ए वर्ड इज रियली नॉट वेरी फ्रीक्वेंट और सब वर्ड वो आ रहा है, तो वो उसके पीछे वो सीक्वेंस जब लिखेंगे वो पीछे बताएंगे कि दिस, फॉर एग्जांपल LO और W के पीछे वो एक स्पेशल टोकन सा वो लगा देते हैं कि हैश करके कि दिस इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस सब वर्ड. So obviously अब आपको मैंने जो references दिए थे, कुछ web links दिए थे, so those are the ones that you will have to refer to as well as the textbook, and of course what we briefly discussed in class as well. So, and obviously I think it's not that complicated, straightforward है. So any other question here? So is this clear? LO भी आपका फिर vocabulary में होगा if this was found to be a subword that occurs frequently in the corpus. सर एक मैंने पूछना था, रेजेक्स में ग्रीडी और नॉन ग्रीडी का भी कोई कॉन्सेप्ट है? जो बाइट पेयर में इट इज एसेंशियली ग्रीडी, बिकॉज हमने 2-3 नाम्स बताए थे. फॉर एग्जांपल टेक्निक्स के, बट हमने जो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था वो बाइट पेयर वाला ही किया था. So there are some other techniques that are not greedy. So byte pair is essentially greedy. और sentence piece जो है वो actually a library. It has multiple implementations. Word piece है, उसके अंदर byte pair भी होगा मेरे ख्याल से, and there are some others as well. एंड सर केस फोल्डिंग जो है वो नॉर्मलाइजेशन में एसेंशियल है? जब भी नॉर्मलाइजेशन करेंगे केस फोल्डिंग हम लोग करेंगे? Actually जितनी भी प्री प्रोसेसिंग है, nothing is really essential. It all depends on your application.
बट इफ़ यू आस्क मी फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस और मैनी एप्लीकेशंस केस फोल्डिंग आप कर देते हैं, बट एक्सेप्शंस तो हैं. फॉर एग्जांपल आपने सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन करनी है फॉर इनफॉर्मल टेक्स्ट, जैसे ट्विटर की या और इनफॉर्मल टेक्स्ट की, तो उसमें केस फोल्डिंग में लीड टू सम लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन. फॉर एग्जांपल जैसे ऑल कैपिटल्स में कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं, वी यूजली अज्यूम दोज टू हैव ग्रेटर एम्फेसिस. तो जब आपने इस चीज़ को हाईलाइट करवाना है अपने एनालिसिस में कि ऑल कैप्स मीन समथिंग डिफरेंट फ्रॉम लोअर केस, तो फिर आप केस फोल्डिंग नहीं करेंगे. सर एक क्वेश्चन था, ये बाइट पेयर इनकोडिंग से था. अगर हम दो वर्ड्स को इनकोड करके नया जब वर्ड बना लेते हैं तो हम दोबारा उसी वर्ड को दोबारा फिर इनकोड कर सकते हैं, अगर वो इस तरह आ रहा है कि वो भी रिपीट हो रहा है बार बार. कोई एग्जांपल दे सकते हैं? मतलब दो वर्ड का मतलब ये है कि जैसे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिस मैन, तरह मैन होल हो गया. एग्जाम्पल नहीं, ऐसे जिस तरह अगर हमारे पास हेलो हेलो इकट्ठा लिखा हुआ है, हम उसमें अच्छा, डबल एल को हम बना लेते हैं, एक एक्स कह लेते हैं, ठीक तो है. इसी तरह फिर वो ई एक्स बन जाएगा, उस जगह पे आ जाएगा. इसी तरह पीछे जो हेलो होगा उसमें भी ई एक्स बन जाएगा, तो उसको भी हम दोबारा इनकोड कर सकते हैं एक इनकोडेड वर्ड को. मतलब आप कह रहे हैं कि एल एल आपका एक इनकोड हो गया, मतलब एक इसको आपने करेक्टर दे दिया, ठीक हाँ है. जी. तो हाँ उसके बाद जी. लेट्स से ये बड़ा हो रहा है, ई आ गया नहीं, इसके अगर साथ, एल एल, हाँ जी, पीछे ई आ गया इसके, और ठीक इसी है, तो तरह बड़ा हो गया, तो ये फिर ये एक नया इनकोडिंग बन गई ना. ये दोबारा से बन सकता है, ई डबल एल एक और इनकोडिंग बन जाए. हाँ, बन सकती है. सो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने डबल एल को लेट्स से कोई और मैंने लेबल दे दिया, एक्स दे दिया, और लेट्स जी से जी. ई एक्स बहुत दफा आ रहा है, तो ई एक्स हाँ को जी. एक और लेबल भी दे सकते हैं, वाई. ठीक है, तो जब हम इसको डिकोड वगैरह कर करेंगे तो फिर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पहले हमने y को ex में करना है, देन हमने ex को x को डबल l में करना है. हाँ, क्योंकि यहाँ पे इस केस में तो रखना पड़ेगा. यू आर राइट. हम्म, ठीक है, बस ये पूछना था कि हम ऐसे कर सकते हैं जो हाँ, इनकोड हो चुका इसको इस उसको. केस में रखना पड़ेगा. एक्चुअली ये है कि आई डिडंट कवर द निटी ग्रिटी डिटेल्स, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के क्वेश्चंस है माइट probably give you a more details with the example, because जी जी. इसमें डिटेल्स थोड़ी सी हैं, एंड ऑब्वियसली जब आप वेब पे देखेंगे कुछ लोगों ने एग्जांपल्स दी होंगी, कुछ नहीं दी होंगी, तो कंफ्यूजन अराइज हो सकती है. ठीक है, ये क्लियर हो गया मुझे. ठीक है. सो एनीथिंग एल्स? So, judging by what we have covered so far, looks like we might not be able to cover all the content, because content काफ़ी होता है NLP में, especially NLP is evolving very quickly in recent years. So, either I should speed up after mid, or let's see क्या करना है हमने, because इसके तो बाद स्पीड जो अप है कर ना. लें, जी, बस स्पीड अप कर लें. स्पीड अप कर लें. अच्छा, ठीक है. बिकॉज इसमें कुछ चीज़ें लग रही हैं, और ऑब्वियसली फाउंडेशन भी बनानी पड़ती हैं. फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, नाइफ बेस, विदाउट डूइंग दैट आई थिंक देयर विल बी सम पीपल हु हैव नॉट टेकन मशीन लर्निंग. तो इसके बाद फॉर एग्जांपल ना वेक्टर रिप्रेजेंटेशंस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट नाउअडेज, और वो काफ़ी बड़ा सेक्शन है, बट लेट्स सी हम उसको किस तरह कवर करते हैं. एक ट्रेडिशनल वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है यूजिंग बेस्ड ऑन को-अकरेंस, एंड देन ऑफ कोर्स वर्ड एम्बेडिंग्स हैं बेस्ड ऑन प्राइमरीली न्यूरल नेटवर्क्स, और उसकी भी कई वेरिएशन है. कंटेक्चुअल एम्बेडिंग्स भी हैं विच इज़ मच मोर रिसेंट, वो शायद प्रॉब्ली हम कवर ना कर पाएँ.
एंड देन ऑफ कोर्स फिर एप्लीकेशन आ जाती हैं ऑफ सीक्वेंशियल मॉडलिंग, जैसे पीओएस टैगिंग है, एनईआर है, वो तो हमने करना ही है फॉर श्योर। बट उसमें एक चैलेंज यहाँ आएगा, लास्ट टाइम इसमें काफ़ी डिटेल में प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल मैंने कवर किए थे सीक्वेंसेस के लिए, बेसिकली मार्कव चेन टाइप के मॉडल्स और उसके सॉल्यूशंस यूजिंग डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो वो देखेंगे कि वो आइदर विल डू इट वेरी क्विकली या वी विल स्किप इट एंटायरली। तो बट उसका एक फ़ायदा डेफिनेटली होता है फॉर डूइंग इट, बिकॉज दैट्स द फाउंडेशन। जब आपको प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की समझ आ जाती है, बाकी न्यूरल नेटवर्क तो आपको पता ही है कि आप लाइनें ड्रॉ करते हैं और वहाँ से कुछ चीज़ें समझ कुछ नहीं आती हैं। प्रोबेबिलिटी समझ आ जाती है, देन यू रिमेंबर एवरीथिंग और यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो खैर उसके खैर मेरे पास स्लाइड्स भी मैंने अपने बनाए हुए, आई माइट शेयर इट एंड वी माइट कवर इट क्विकली, we might not go into details, we'll cover it quickly and then move on to the neural network based approaches for POS tagging and NER. और उसके बाद we also have to cover a bit of semantics and resources, जिसमें web resources आ जाते हैं, विकिपीडिया हो गया और वर्डनेट हो गया, so that's also quite useful in NLP. फिर उसके बाद कुछ एप्लीकेशंस थी, जैसे वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट ट्रांसलेशन एज वेल एज चैटबॉट्स। ऑल्दो ये जो एप्लीकेशंस हैं, इनकी सॉल्यूशंस जो आजकल आ रहे हैं वो प्राइमरीली न्यूरल नेटवर्क बेस्ड हैं। सो वंस वी हैव अंडरस्टूड न्यूरल नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस वुड बी फेयरली इजी। वही उसी की एप्लीकेशंस हैं, हमने सिंपली डेटा को उस तरह प्रेजेंट कर देना एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व देम। तो सर जो लास्ट असाइनमेंट होगी, कैन वी कन्वर्ट दैट टू रीडिंग असाइनमेंट? जो लास्ट असाइनमेंट जो भी होगी जिसमें आपके पेपर्स हमें रीड करने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट पेपर्स, उसका क्या फायदा होगा रीडिंग असाइनमेंट का? साथ साथ पेपर्स, वो तो फिर पेपर प्रोजेक्ट में ओवरव्यू आप हो करें जाएंगे ना, लेटेस्ट में। प्रोजेक्ट भी आपके पास है, प्रोजेक्ट में आप पेपर देखेंगे। तो प्रोजेक्ट भी है ना, प्रोजेक्ट में आपको बिट ऑफ लिटरेचर तो देखना पड़ेगा। तो रीडिंग असाइनमेंट में भी यू आर सेइंग इन टर्म्स ऑफ जस्ट एक्स्ट्रा रीडिंग और एज ए असाइनमेंट दैट नीड्स टू बी सबमिटेड? असाइनमेंट की बात कर रहा था, आगे असाइनमेंट्स हमारी आई थिंक 2 more, we need to do हाँ, 2 more मिनिमम 2 assignments. more तो प्लान तो है, because one more would, the next would probably be on embeddings and neural networks, and the last would be some neural network towards some application like machine translation या POS tagging. तो या टाइट तो होता है, बिकॉज वी हैव ए सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स। इशू यही होता है कि जो प्रीवियस मटेरियल भी हमने कवर करना है बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट, और नेक्स्ट मटेरियल के बेसिस पे कुछ असाइनमेंट्स पे उसके लिए टाइम कम हो जाता है, बिकॉज वी हैव नॉट कवर्ड दोज एज येट इन क्लास। तो आई नो ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास जो जिनको नहीं आइडिया एग्जैक्टली वर्ड एम्बेडिंग्स फॉर एग्जांपल क्या होती है, तो वो उस वक्त ही होगी जब हम क्लास में पढ़ेंगे। Of course, some people may know from previous classes, but we can't assume that everyone knows them. तो ये फिर इश्यू होता है क्लास में। अच्छा, what else? सर जो बाइनरी नाइफ बेस है सर, उसमें जब हम वर्ड काउंट कर रहे होते हैं तो हम उसको ये 0 और 1 पे ले जाते हैं बाइनरी। तो सर जो फॉर क्लास काउंट कर रहे होते हैं सर, जो डिनोमिनेटर में क्लास का काउंट होता है सर, उसमें भी 1 काउंट करते हैं या उसमें मल्टीपल काउंट्स आते हैं? प्रायर की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास? नहीं नहीं सर, जो अच्छा डिनोमिनेटर सर में जो है, अच्छा नहीं उसमें भी वंस वाला ही आता है, बिकॉज वी हैव चेंज द डेटा सेट इनटू वंस, तो 1 का ही बेसिस पे आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट्स से वर्ड लाइक गिवन पॉजिटिव, ठीक है ना, तो आप बेसिकली you will count the number of times that like occurs in positives, ठीक है, but
फॉर ईच डॉक्यूमेंट विल ओनली काउंट वन, लाइक मे बी एक डॉक्यूमेंट में 10 दफा आ रहा है, उसको एक में एक ही करेंगे. रिमेंबर जो रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जहां भी मोर देन वन लिखा तो उसको वन कर दिया हमने. और सिमिलरली जब डिनोमिनेटर में हम काउंट करेंगे, विल काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स दैट वी हैव सीन ऑल वर्ड्स इन पॉजिटिव. ठीक है ना, तो वो भी ऑल वर्ड्स काउंटेड एज वन पर डॉक्यूमेंट. ठीक है, सो लेट्स से लाइक 10 दफा आ रहा है एक डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट के लिए सर वन ही काउंट होगा. और लेट्स से कोई और वर्ड डी आ रहा है 10 दफा एक वर्ड में, एक डॉक्यूमेंट, वो एक ही दफा काउंट होगा उस डॉक्यूमेंट के लिए. अगले डॉक्यूमेंट ऑफ कोर्स फिर आ रहा होगा, बट उस पे उस डॉक्यूमेंट के लिए फिर वन होगा. ठीक है, तो इन अदर वर्ड्स बेसिकली आप जब अज्यूम करते हैं ना, कोई आपके पास वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आ जाती है 1 0 1 1, तो और दूसरा डॉक्यूमेंट है 0 1, आपने इसी डेटा से ही कैलकुलेशन करनी है. और दूसरे केस में ऑफ कोर्स वो ज़्यादा बड़े नंबर्स होंगे. ठीक है, तो आपने इस डेटा से कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, सो दैट्स द डिफरेंस. डेटा आप चेंज कर लें, बाइनराइज कर दें, एंड देन डू द प्रोसेसिंग सिमिलरली. मल्टीनोमियल ही रहेगा. कोई और क्वेश्चन? अच्छा, ठीक है, तो मेरे ख्याल से if there are no questions we can end this session today. सर गुड ट्यूरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था. किसके? गुड ट्यूरिंग जो हमारा था हम्म. सर, गुड ट्यूरिंग में ये था कि अगर काउंट ज़्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाती है, जी जंपीनेस जी. आती है. तो सर काउंट इंक्रीज होता था तो हम ये भी तो कह रहे थे कि उसका जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट होने लग जाता है. तो इस हिसाब से हम नहीं देखते उसको कि परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है कि एक कांस्टेंट डिस्काउंटिंग ही हो रही है उसमें फिर. काउंट जब ज़्यादा हो जाता है तो गुड ट्यूरिंग में जो इशू आता है वो नॉइजीनेस का आता है. सो n लेट्स से सम 300 या 5000 वुड बी 0 एंड n 5001 वुड बी 1, तो मतलब इट वुड बी नॉइजी. और जब आप इसकी स्मूथिंग करेंगे, आपने प्रीवियस NC लेना होता है, राइट? जी. तो वो फिर स्मूथिंग में एक जगह पे 0 हो जाएगा, एक जगह कोई वैल्यू आ जाएगी, तो वो स्मूथ रहता नहीं है. तो इश्यू ये होता है. पर दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका कि क्या किस तरह करेंगे? नहीं, वो फिर मैंने मिक्स कर दिया था. मैं डिस्काउंटिंग कह रहा था कि डिस्काउंटिंग हम कह रहे होते हैं ना कि 0.75 की कांस्टेंट होने लग जाती है. हाँ हाँ हाँ. हाँ नहीं, वो तो तो मैं मिक्स. वो जो हाँ जीरो जी. पॉइंट सेवन फाइव है, ऑब्वियसली वो जो फाइनल टेबल दिखाया हुआ है ना, वो आफ्टर फिक्सिंग द पावर लॉ, और वो जनरली बहुत दूर जाके होता है. ये तो हमने जो टेबल भी दिखाया था वो शायद 10 तक, C = 10 तक दिखाया हुआ था. जी. जी. तो उससे जब ज़्यादा जाते हैं तो वो आप बेशक 0.75 माइनस भी करेंगे ना, वो आपके हमेशा जीरो ऊपर आनी शुरू हो जाएगी. रिमेंबर वो हमारे पास था मैक्स विद जीरो, तो 0 0 होने शुरू हो जाएगा. वैसे ही उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत थोड़ी हो जाएगी. सही. Okay? किसी का और क्वेश्चन था? कोई मैसेज आया था, आई डिडंट गेट दैट मैसेज. अच्छा, एक सेकंड.
अच्छा, ये क्वेश्चन किसी का आया, बट आई डिडंट क्वाइट गेट द क्वेश्चन। रेगुलर एक्सप्रेशन में टीएन और एफपी कहाँ से आ गया? अच्छा, वो एरर एनालिसिस की बात हो रही है इन जनरल। वो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी होती है, क्लासिफिकेशन में भी होती है। सो इफ दैट इज फिर सर वो मेरे ख्याल से ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव और फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो ठीक है, वो ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, वो ये सारी चीज़ें रेगुलर एक्सप्रेशन में भी, ओके दैट्स फाइन। ये रेगुलर एक्सप्रेशन में भी यूज हो सकती है, बट क्लासिफिकेशन में भी हमने डिस्कस की थी। तो इट्स बेसिकली अ वे ऑफ इवेलुएटिंग। सो सो बेसिकली दो चीज़ें हैं इसमें। आप यू नीड टू हैव ए आइडिया ऑफ व्हाट इज प्रिडिक्टेड एंड व्हाट इज एक्चुअल। ये आपकी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ प्रिडिक्टेड इज डन बाय ए मॉडल एंड एक्चुअल व्हाट इज द ग्राउंड ट्रूथ, ठीक है। या प्रिडिक्टेड को आप क्लासिफाइड भी कह सकते हैं, वट एवर, डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम सेटिंग, ठीक है। सो बेस्ड ऑन दिस यू कैन काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स there is an error and there is correctness, and then you can put them into FP. So what exactly these are? So true TP is basically true positives, ठीक है। So true positive का मतलब ये है कि so of course positive जो आप लेंगे, we are considering this in the sense of there are two classes, one is positive, the other is negative, ठीक है। But let's say if they are not defined as positives and negatives, you can consider any one of those as the positive. Let's say आपके पास दो टॉपिक की प्रॉब्लम है, बाइनरी टॉपिक प्रॉब्लम है। लेट्स से एक टॉपिक पॉलिटिक्स का है और दूसरा लेट्स से स्पोर्ट्स का है, ठीक है ना। तो यू कैन कंसिडर पॉजिटिव्स एज पॉलिटिक्स, ठीक है। नेगेटिव्स आपका दूसरा हो जाएगा विच इज स्पोर्ट्स, ठीक है। सो द आइडिया नाउ इज दैट लेट्स से योर मॉडल predicts an example as positive, ठीक है। predicts मतलब जो मॉडल आपने बनाया वो कहता है एक एग्जाम्पल, से मैं कहता हूँ एग्जाम्पल 1, आपका मॉडल कहता है वो पॉजिटिव है, ठीक है। और लेट्स से चलें पॉजिटिव ही ले लेते हैं, और वो एक्चुअली भी पॉजिटिव है, ठीक है ना। सो दिस इज ए ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। सो लेट्स से वी हैव अनदर एग्जाम्पल, वो पॉजिटिव था, सॉरी, सो लेट्स से आपका मॉडल है नेगेटिव का, वो एक्चुअली पॉजिटिव था, ठीक है। तो ये क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन एरर। तो एरर हमेशा एफ होता है, फॉल्स, ठीक है ना। सो अब फॉल्स क्या हमने किया, उसको नेगेटिव किया ना उसको, तो ये एफ एन है। तो लेट्स से यू हैव अनदर एग्जांपल, तो ये हमने प्रेडिक्ट पी किया, एक्चुअली वो एन था, ठीक है। तो ये भी एक एरर है। तो फॉल्स तो पता चल गया हमको, बट फॉल्स क्या हमने कर दिया, उसको पी किया ना, पॉजिटिव किया, ठीक है। सो इस तरह आपने सारे काउंट करके एफ पी, एफ एन, टी पी और टी एन आप टेबल में डाल सकते हैं। सो रेगुलर एक्सप्रेशन में भी आप वही बात हो रही थी, वहाँ भी क्लासिफिकेशन हो रही थी। वेन एवर यू डिफाइन अ रेगुलर एक्सप्रेशन, लेट्स से वेरी सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन, मैं एग्जैक्ट कोई लिख देता हूँ 80। सो वेन एवर 80 मैचेस with 80 and we are actually wanting to find 80, so that is a true positive, ठीक है। So whenever 80 matches something but we are not actually trying to find that, let's say we were actually trying to find capital 80, ठीक है, और हमने रेगुलर एक्सप्रेशन स्मॉल 80 वाला लिख दिया, so this would be a false positive। एक तो एरर है और दूसरा हमारे एल्गोरिथम ने ढूंढा है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, मतलब उसको प्रिडिक्ट कर दिया एज करेक्ट, दिस इज अ फॉल्स करेक्ट, ठीक है।
So it all depends on what you intend to do and what your regular expression finds and the mismatch between that. So if the regular expression finds exactly what you intended, so that is true. Okay? And if it is found the correct word, that's true positive. It has found the correct wrong word, that's true negative, and otherwise it is always false, and it could be false positive, false negative. ठीक है. So ये एक दफ़ा आपको थोड़ा सा लिख के रीज़न करना पड़ेगा, फिर ये समझ आएगा. आई नो कि शुरू में ये फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है. आई रिमेंबर इन माय ग्रेजुएट स्कूल भी शुरू में आई यूज्ड टू पुल माय हेयर, ये कंफ्यूजिंग होता है. सो यू नीड टू थिंक ऑफ एक लेबल को आप कंसिडर कर लें, उसको पॉजिटिव कह दें, एंड देन यू प्रोसीड फ्रॉम देयर. Okay, any other question? Okay, I think जी जी सर हमने प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था. जी. बेसिकली हम इंटरेस्टेड हैं चैटबॉट में, तो अब्दुल रहमान इसके बारे में कुछ बताता है आपको. अब्दुल रहमान, आपकी आवाज जो है बैकग्राउंड नॉइज काफी आ रही है. जी सर हमने चैटबॉट का सोचा हुआ है, ये एप्लीकेशन का आपसे डिस्कस करनी थी. क्या एप्लीकेशन हो सकती हैं और वो जो हम इस इतने टाइम पीरियड में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. चैटबॉट का मैं ये बता दूं कि इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ए सिंपल चैटबॉट, तो उसके ऑफन टाइम्स APIs बड़े स्ट्रॉन्ग अवेलेबल मिल जाते हैं. उसका कोई प्रोजेक्ट करना है तो देन आई वुड रेकमेंड कि अच्छी एप्लीकेशन आप लेके आएँ, देन दैट वुड बी फाइन. या फिर आप ये करें कि इफ़ यू आर रियली इनटू चैटबॉट मॉडर्न रिसर्च, तो फिर आपको रिसेंट पेपर को देखना पड़ेगा, बट दोज आर यूजुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड, और मेरा नहीं ख्याल आप कर पाएंगे, बिकॉज चैटबॉट हमें टुवर्ड्स द एंड ही डिस्कस करना है ऑफ दिस सेमेस्टर. ओके. तो इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन कोई ले लें, वो उसके अराउंड आप कोई चैटबॉट डिफाइन करें और उसका प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं. सर मैं कोई एग्जांपल दें जिससे मतलब आइडिया हो जाए कि इस तरह की एप्लीकेशन हम मतलब इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन का दो तरीके होते हैं. एक तो ये होता है कि सम एप्लीकेशन विच हैज नॉट बीन वाइडली यूज्ड प्रीवियसली, ठीक है. और दूसरा हो सकता है कि सम एप्लीकेशन विच हैज लोकल कॉन्टेक्स्ट, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है या आपका लम्स का कॉन्टेक्स्ट है या व्हाटएवर उर्दू का कॉन्टेक्स्ट है, इस तरह की चीज़. दो चीज़ें मैंने बताई. एक तो ठीक है इंटरनेशनल उसका यूज़ तो है, बट वो इट हैज़ नॉट बीन वाइडली अवेलेबल. फॉर एग्जांपल वाइडली अवेलेबल चैटबॉट्स क्या हैं? कस्टमर सपोर्ट्स की मिल जाती हैं आपको, ऑर्डरिंग की मिल जाती हैं. तो इसके अलावा कोई चीज़ है इंटरेस्टिंग तो वो की जा सकती है, या जैसे मैंने कहा कि कोई लोकल कॉन्टेक्स्ट में कोई एप्लीकेशन हो. ओके. ठीक है. और सर हमारा सेकंड आइडिया के क्वेश्चन आंसरिंग वाला जो सिस्टम होता है, वो आइडिया कैसे, मतलब जो क्वेश्चन जनरेट करता है और आंसर्स भी जनरेट करता है एक मॉडल जिसको हम टेक्स्ट देते हैं. हाँ नहीं वो भी हो सकता है, उसमें भी आप
डिफरेंट दोनों तरीके हैं, आप लेटेस्ट रिसर्च दे सकते हैं, उसमें कोई मॉडल इम्प्लीमेंट कर लें, या कोई एप्लीकेशन आप देखें और उसको चला के दिखाएं प्रोजेक्ट में। तो क्वेश्चन आंसरिंग बाय द वे इज वेरी सिमिलर टू चैटबॉट्स, कंसेप्ट वही है, इंटरेक्शन आपने करनी है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, देन बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंड यू नीड टू मेक अ रिस्पांस। ओके चलो ठीक है, हम वो डिस्कस करते हैं अपने ग्रुप मेंबर से, देन वी सबमिट द प्रपोजल। जी ठीक है, थैंक यू सर।